Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our comparative anatomy of vertebrate paper. In this video lecture, we are going to discuss about the comparative account of digestive system. We had already completed our first unit. Now we will go for the second unit. So, first question is that what is digestive system? So, the system which converts the complex food material into the simpler form, whatever the meal we take daily basis for gaining the energy that is utilized or that is break down in our body in digestive system. So it is a system which is made up of certain organs which converts the complex food material into the simpler form. Now what is the complex food material? It could be carbohydrates what we take, or proteins and lipids. So the simpler form is uh, of carbohydrate is glucose, so it's converted into glucose, and proteins are converted into amino acids, and lipids are converted into the fatty acids. So this is how the process is done. Why it is done? So the simplification of nutrients is done for the formation of energy, because our body is having certain other organ systems which works for the process of energy, or which produces energy, and that is done by the simple material or simple nutrients help them in the formation of energy for the utilization of एनर्जी फॉर द अदर बॉडी फंक्शंस. तो हमारी बॉडी जो वर्क करती है, अदर वर्क्स करती है, कोई भी सिस्टम हो, दैट द सर्कुलेटरी सिस्टम या कंटिन्यूस पंपिंग ऑफ हार्ट या नर्वस सिस्टम का मैकेनिज्म, तो सारे मैकेनिज्म बेस करते हैं ऑन द एनर्जी. एनर्जी होगी तभी अदर वर्क करेंगे, मैकेनिज्म जो होगा वो कंटिन्यू होगा, अदरवाइज नहीं होगा. नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू parts or two important parts. So first is alimentary canal is there, and then digestive glands are included into that. एलिमेंटरी कैनल क्या होगा? एलिमेंटरी कैनल का कंपेरेटिव जो पार्ट है वो मैं स्टार्ट करूँगी, बट शॉर्ट में बता देती हूँ. एलिमेंटरी कैनल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं, या एलिमेंटरी कैनल जिसको बोला जाता है, सो वो सारा सिस्टम एलिमेंटरी कैनल के अंदर इंक्लूड किया गया है. एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स विच सिक्रीट सर्टेन जूस और सर्टेन liquid material which just helps in the lysis or breakdown of the food material. Now let us go for the another slide for understanding the comparative account. So here is a blank slide. Okay, so we have to do the comparative study, no doubt. So क्लासेस की स्टडी करने हैं तो पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एग्स एंड मैमल्स का करना है. तो पाइसेस में पहले जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं, सो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स विद द माउथ पार्ट. So mouth is ventral in position in case of Pisces. It is anterior in case of amphibians, and a wide slit-like structure is in case of reptiles. And in case of apes, we know that the birds have beak, or that is जो जॉज है वो बीक में कन्वर्ट हुए होते हैं, हॉर्नी जॉज जिनको बोला जाता है. एंड in case of mammals it's subterminal. Okay, in position subterminal मतलब हेड से स्लाइटली थोड़ा सा नीचे. उसके बाद जो मैमल्स का माउथ है दैट इज़ हैविंग अ क्लेफ्टेड लीप. जो इन केस ऑफ अगर हम दे रहे तो रैट का अगर ले रहे हैं, रैट या रैबिट का, तो वहाँ पे जो अपर लिप है वो स्लाइटली क्लेफ्टेड होता है. एंड इट इज़ हैविंग, तो मैमल्स का जो माउथ है दैट इज हैविंग फ्लैशी लिप्स. सो इट इज हैविंग फ्लैशी लिप्स. So this is how the mouth part is there. Later on mouth part opens or mouth opens into the buccal cavity. अभी buccal cavity क्या होती है? Buccal cavity is a cavity where teeth or tongue is there. So in case of Pisces, I'll make blocks
for the comparison. Okay, let them be. Okay. So in case of Pisces, the buccal cavity is shallow, loosely organized होगी, और रूफ में जो होंगे डर्मल टीथ होंगे. कैसे टीथ से? यहाँ पे डर्मल टीथ से, मतलब डर्मिस से बने हुए टीथ से, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है वो पढ़ाया है. एंड नेक्स्ट, इन केस ऑफ एम्फीबिया, कॉम्पैक्ट एंड मस्क्यूलर बक्कल कैविटी है यहाँ पे, मस्क्यूलर बक्कल कैविटी है. वेर एज इन केस ऑफ रेप्टाइल्स ऑल्सो सेम, कॉम्पैक्ट एंड मस्क्यूलर होगा. और जो एव्स है यहाँ पे ऑब्वियसली बीक से सराउंडेड है, क्योंकि बीक ही है वहाँ पे. और इन केस ऑफ मैमल्स इट इज़ वाइड स्प्रेड बक्कल कैविटी इज देयर विच इज़ हैविंग अ पर्टिकुलर स्पेस जिसका नाम है वेस्टिब्यूल, जिसको बोला जाता है. अभी वेस्टिब्यूल क्या है? वेस्टिब्यूल इज़ अ स्पेस इन बिटवीन टीथ एंड चीक्स. चीक्स और टीथ के बीच में जो स्पेस होता है that is called as vestibule. So vestibules are present in case of these mammals only. Okay. Later on, the next part which just goes for or which is included into the digestive system of vertebrates is teeth. तो teeth जो है in case of these Pisces, teeth will be large, inverted and homodont type. homodont मतलब सिंपल सेम साइज़ के होंगे, सेम टाइप के होंगे. और पॉलीफायोडोंट टाइप होते हैं, यानी वो टूटने के बाद फिर से आ जाते हैं. तो इन सब में फायोडोंट टाइप ऑफ टीथ होंगे. पाइसेस, एव्स, रेप्टाइल्स एंड एव्स में तो टीथ्स नहीं होंगे क्योंकि बीक है, टूथलेस बीक है यहाँ पे. एंड मैमल्स में क्या होगा? डायोडोंट टाइप होंगे, मतलब सिर्फ वो 2 बार आएंगे, क्योंकि हमारे मिल्क टीथ होते हैं उसके बाद टूट जाते हैं मैमल्स में, और फिर परमानेंट टीथ्स आते हैं. सो दिस इज़ हाउ इन केस ऑफ mammals is there. उसके बाद there is another part that is tongue. tongue क्या होगी? in case of Pisces it will be small, muscular and non muscular. tongue small होगी, non muscular होगी. in case of amphibia it will be large and retractile. अभी retractile मतलब क्या? retractile means it can be just taken out and taken in back. तो you might have observed frogs catching up insects. so उनकी जो टंग होती है उसको ऑब्ज़र्व किया होगा, जीभ को ऑब्ज़र्व किया होगा, वो बाहर जीभ को फेंकते हैं और फिर वापस से अंदर ले लेते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड एज retractile, which means that they can just take it out and throw it to the certain distance and take it back. and in case of reptiles it is posterior and attached to the buccal cavity floor. तो यहाँ पे immovable type है, it is attached and completely stuck to the floor of buccal cavity. in case of A's it is small triangular shaped, it is small triangular shaped tongue is there. and in case of mammals it is large and muscular and it is movable in any direction. so this is how the tongue is there in case of these all animals. Now let us go for the next slide where I have certain different types of digestive system, or we can say the digestive system of different classes. so ये start कहाँ से होता है? so it starts from the ओसोफेगस. so पहला जो पार्ट होगा वहाँ पे ओसोफेगस जो है, तो in case of this shark you can observe it is small, ओसोफेगस is small. in case of salamander also it is small, but यहाँ पे slightly थोड़ा सा जो है बल्जी है, या हम बोलते हैं स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें. बट हियर इन केस ऑफ एम्फीबिया इट इज़ पाइप लाइक स्ट्रक्चर, एंड इन केस ऑफ लिजार्ड ऑल्सो इट इज़ स्मॉल एंड स्ट्रेट ट्यूब विथ म्यूकस ग्लैंड. तो यहाँ पे इन केस ऑफ रेप्टाइल्स देर विल बी
म्यूकस ग्लैंड विल बी प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो ओसोफेगस है वहाँ पे म्यूकस ग्लैंड होगी इन केस ऑफ रेप्टाइल्स। पिजन जो है, पिजन का नैरो है, स्मॉल है, बहुत छोटा सा है, एंड दैट म्यूकस ग्लैंड विल बी एब्सेंट देयर। और यहाँ पे इन केस ऑफ पिजन देर विल बी अनदर पार्ट are present, like crop is there and gizzard is there. So the crop is present in pigeon, where other animals में ये नहीं होगा. And in case of mammals it is all long, straight, thin walled, highly muscular, and it is also has a mucus gland in case of mammals. Next part that comes after oesophagus is stomach. Stomach in case of Pisces it is J shaped, देख सकते हो यहाँ पे J shaped stomach है, and it is divided into cardiac and pyloric stomach. Okay, cardiac and pyloric stomach. In case of amphibians it is slightly curved, and यहाँ पे pyloric and cardiac stomach होगा सेम. और यहाँ पे इन केस ऑफ रेप्टाइल्स इट इज़ सैक लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे देख सकते हो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू कार्डियक एंड पाइलोरिक स्टमक. और यहाँ पे जो पाइलोरिक स्टमक है वहाँ पे पाइलोरिक वॉल्व भी प्रेजेंट होगा. इन केस ऑफ लिजार्ड्स पाइलोरिक वॉल्व भी प्रेजेंट होगा. इन केस ऑफ बर्ड्स इट इज़ प्रोवेंट वेंट्रिकुलर एंड गिजार्ड जो है, गिजार्ड वॉल्व, गिजार्ड वहाँ पे प्रेजेंट होगा स्टमक के साथ में. यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है तो दैट गिजार्ड विल बी देयर. एंड यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट नहीं होगा, जो पाइलोरिक वॉल्व है वो एब्सेंट होगा. एंड इन केस ऑफ मैमल्स द स्टमक विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. तो यहाँ पे देख सकते हो द स्टमक, यहाँ पे जो सिर्फ कार्डियक और पाइलोरिक था, यहाँ पे कार्डियक, पाइलोरिक एंड फंडिक स्टमक विल बी देयर. ओके, फंडिक स्टमक विल बी देयर. और उसके पास में जो है डिओडेनम भी प्रेजेंट होगा. ओके, द नेक्स्ट पार्ट दैट कम्स आफ्टर स्टमक इज इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन इज इन केस ऑफ शार्क इट इज़ शॉर्ट. यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट है, डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स. ये डिओडेनम इज़ देयर एंड इलियम इज़ देयर. इलियम में क्या होगा, इलियम में जो है यहाँ पे देख सकते हो जो ऐसे मशीन लाइक और ग्रिंडिंग लाइक स्ट्रक्चर होंगे प्रेजेंट. इन केस ऑफ सैलमेंडर इट इज़ लॉन्ग कॉइल्ड स्ट्रक्चर एंड डिओडेनम और इलियम प्रेजेंट होगा. यहाँ पे भी डिओडेनम एंड इलियम विल बी देयर, विच मीन्स के जो डिओडेनम होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है, और जो इलियम होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है. सो दिस इज़ द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट हियर. और इसके बाद रेप्टाइल्स में भी सेम होगा, लार्ज कॉइल्ड एंड डिओडेनम एंड इलियम होगा. पिजन्स में जो है डिओडेनम, इलियम, और जो इलियम है वो बहुत लॉन्ग होगा, स्पेशली इन केस ऑफ हर्बीवोर बर्ड्स जो है एव्स में, तो उनमें बहुत लॉन्ग जो है इलियम होता है, जबकि डिओडेनम बहुत शॉर्ट होता है. एंड इन केस ऑफ मैमल्स देयर इज़ सेम एज जो एव्स है, एव्स और मैमल्स का सेम ही है कि यहाँ पे इलियम लार्ज है एंड डिओडेनम में विल बी देयर. और बट यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंस ये है कि ये जो डिओडेनम है वहाँ पे पैंक्रिएटिक ओपनिंग, यानी पैंक्रियाज की जो डक्ट है, पैंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग होती है, और जो बाइल डक्ट है उसका ओपनिंग होता है इन केस ऑफ मैमल्स ओनली. ओके, यहाँ पे क्या ओपन हो रहा है, बाइल डक्ट एंड pancreatic duct which opens into the duodenum. Okay, next part that is included into the digestive system is rectal gland. Rectal gland is there. Rectal gland जो है in case of shark it opens into the rectum. यहाँ पे देख सकते हो जो है वो रेक्टम में ओपन होती है. तो ये जो शॉर्ट पिंक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, सिक्कम जिसको बोला जा रहा है, सो दैट इज़ काइंड ऑफ, तो वो वहाँ पे ओपन होता है रेक्टम में. एंड इन केस ऑफ सैलामेंडर इट्स एब्सेंट.
In case of lizard, it is single rectal cecum will be there. और in case of एज जो है जंक्शन ऑफ जो रेक्टम और कोलम है वहाँ पे रेक्टी सिक्के प्रेजेंट होंगे. यहाँ पे देख सकते 2 सिक्के हैं. ओके, आई विल जस्ट जूम इट आउट सो दैट यू कैन ईजीली वॉच इट. तो यहाँ पे देख सकते हो ये पिंक कलर के 2 सिक्के दिखाई दे रहे, रेक्टल सिक्के. ओके, एंड उसके बाद इन केस ऑफ दिस mammalian digestive system, इलियोसिकल वॉल्व विल बी प्रेजेंट देयर. यानी इलियम और सिकम के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होगा. एंड एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इलियम है वहीं पे कोलन होता है और एक वर्मी फॉर्मिक जो अपेंडिक्स होता है वो होता है. सो यहाँ पे वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, बट वो एक स्ट्रक्चर होता है. अपेंडिक्स इज अ स्ट्रक्चर जो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा जो यहाँ से ऐसे स्लाइटली अराइज होगा. And that is present in case of mammals only. Okay, the last part that is included into the digestive system is rectum is there. ये जो purple part दिख रहा है तो that is rectum. So this is so this is rectum. Rectum is the last part of the digestive system which opens into the cloaca directly. तो यहाँ पे from shark to the एज ये जो रेक्टम है वो डायरेक्टली क्लोइका में ही ओपन होगा. बट इन केस ऑफ मैमल्स क्लोइका इज नॉट देयर, देयर इज एनस. सो ये जो रेक्टम है वो डायरेक्टली एनस में ओपन होगा. नाउ फ्रॉम इन केस ऑफ इन केस ऑफ पाइसेस एंड एम्फीबिया, यहाँ पे क्या होगा, रेक्टम और क्लोइका होगा और यहाँ पे सब में यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग सेम होगी. विच मीन्स द एनस और यहाँ पे जो क्लोइका है यहाँ पे सब में जो है वो यूरिन सिस्टम का भी ओपनिंग होगा और जेनाइटेलियल सिस्टम का भी ओपनिंग होगा. सो दिस इज़ हाउ द एलिमेंटरी कैनल इज़ देयर एंड दिस इज़ हाउ द एलिमेंटरी कैनल works. So hopefully we understood the complete alimentary canal. So we'll stop here and in our next video lecture I'll give you an account related to the digestive glands or which digestive glands are included in which class. We are not going to see it in that detail because we have to learn about only comparative study कि कौन सी digestive glands present है. So we'll stop here. Thanks for watching. Have a nice day.